we discuss about the algorithm and a flow chart, in which we decide the topic is introduction of the algorithm and flow chart, advantages and disadvantages of the flow chart, rules of making a flow chart, and converting a algorithm into flow chart, and what is program. Okay. And introduction. You know, computer understand only machine language, and all instructions are given to a computer to perform a task is done in computer language only. Instead, computer don't know our language, computer don't know Hindi, computer don't know English. Computer know machine language. Machine language is 0 and 1. Okay. Set of instructions written in the computer language is called a program. Means if we want instruction, if we give a instruction to a computer, the computer react on it. अगर हम कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर वर्क सिर्फ इंस्ट्रक्शन पर वर्क करता है. ओके, कंप्यूटर today's computer is all work on a instruction. A person who write a program is known as a programmer. जिस प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में चलता है, जैसे अभी आपका मीट चल रहा है या आप वर्ड पे काम करते हो, पेंट पे काम करते हो, ये सब एक प्रोग्राम है, मींस सॉफ्टवेयर है. इनको किसने लिखा है? आप प्रोग्रामर ने. अंडरस्टैंड? अ टेक्निक ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, और इस टेक्निक को बोलते हैं प्रोग्रामिंग. इट्स अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन. आफ्टर दिस, प्रोग्राम राइटिंग इज अ 3 step. 3 step is creating algorithm, drawing flowchart, and converting flowchart into a program. These are 3 steps we follow in a program. Today we discuss about algorithm and flowchart. How to create an algorithm? Algorithm basically is a step-by-step process. It start on step 1 is called start, and end on last step is called stop. Steps limit is unlimited. आप जितने चाहो उतने इसमें स्टेप्स लिख सकते हो एल्गोरिदम्स में. जितने आपके स्टेप्स इसमें बढ़ते जाएंगे उतना आपका एल्गोरिदम बड़ा होता जाएगा. एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, मींस स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, या अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखना, उसे लैंग्वेज में लिखने से पहले. To solve a problem written in a simple language like English. Basically, we write an algorithm in a simple language, English. You can see in a screen. Step 1 is start. Step 2 is a enter number 1. Step 3 is enter number 2. And step 4 is add the 2 number. Step 5 is print result. This is the next step is other algorithm to multiply the 2 numbers. This is the same algorithm like previous one. Start, enter number 1, 3, enter number 2, step 4, multiply first number by second number, step 5, print the result, or in step 6, stop. Start and stop is the basic step of algorithm. And next topic is flowchart. We discuss this topic after the presentation is in a blog way. Okay. Next topic is flowchart. Chapter is algorithm and flowchart. Flowchart. A flowchart is a graphical or diagrammatical representation of a algorithm. Means if you draw anything in a flowchart, if you draw anything in a paper or in a computer, steps the algorithm in the flowchart symbols. First symbol is start and end symbol. This symbol, it's like a oval shape. This symbol we use in a start and end of a flowchart. The symbol denoting the beginning and end of a flowchart. This symbol. Everybody see the symbol? First symbol, start and end symbol. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next. Okay. Yes, sir. Next.
Next symbol is, it's a processing box. You all see in a second line in this PPT page. And third is decision. Decision means if in your flow chart, अगर आपके फ्लो चार्ट में कोई भी डिसीजन मेकिंग एक ऑप्शन है, मींस अगर कोई इफ कंडीशन आता है, लाइक इफ यू वांट टू स्टेप लाइक टू ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, if you want to find a greater number and smaller number between the two number, and in which the condition we check which number is greater than other. Okay, in this condition we use the decision box. Okay, and in a parallelogram, okay, in front of write the action. This symbol means that the user perform an action. In many flowchart, steps and action are interchangeable. Talk about इसके बारे में पढ़ चुके हैं. This is the input output box. Please switch off your microphone. This is processing box. This is decision box, and this is flow lines. Flow lines, it is used to connect the shapes. Flow chart always working on a top to bottom. Okay, and flow lines, it's a direction of a symbols. Means first step के बाद flow chart किस symbol पे जाएगा, ये कौन decide करता है? It decide by the flow lines. We can draw the flow lines for this. Flow lines. And last is connector. It's a circle shaped that is used to join the parts of a flow chart. अगर आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, काफी बड़ा फ्लो चार्ट आपने डिजाइन किया है, और अगर आपको छोटा करना है, मींस आपको उसमें कुछ ऑप्शंस हटाने हैं, तो उसके लिए आप कनेक्टर यूज करेंगे. कनेक्टर इज अ सर्कल शेप. Instruction. You know that being a machine, a computer understand the instruction, give it to it in its language, and that is machine language. Means computer understand only machine language. अगर हमें कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, तो हम क्या यूज करेंगे? उन्हें मशीन लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को देंगे. बट वी टाइप ऑन इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इज कन्वर्ट ऑटोमेटिकली. Okay, please do not interrupt in a class. If you want to say anything, please type in a chat box. Otherwise, listen the class. If you want to type anything in a computer, you type in a English language. But computer convert itself in a machine language. It's a other chapter thing. Now we discuss about the flowchart algorithm and flowchart. And first is program. If someone, अगर आपसे कोई पूछता है add 8 plus 5, you can quickly give the answer 13. But if someone asks to the computer, अगर यही क्वेश्चन कंप्यूटर से करा जाए, तो कंप्यूटर अपने आप ये आंसर एबल देने के लिए नहीं है. कंप्यूटर ये आंसर itself नहीं दे सकता. क्यों नहीं दे सकता? Because computer is a machine and its work on a instructions. Okay, this is because your instruction is not understood by the computer. अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर से बोलोगे प्लीज ऐड 8 plus 5, कंप्यूटर ऐसा नहीं कर पाएगा, प्लीज कंप्यूटर इस चीज के लिए नहीं बना है. ओके, इट कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन. ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन को समझता है जो इसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस से मिलती है. एंड द इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ लैंग्वेज विद व्हिच अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम. और जो हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, मींस अगर हमें ड्रॉ करना है, तो हम इसके लिए क्या ऑन करेंगे? पेंट. वी ओपन द पेंट सॉफ्टवेयर. इफ यू वांट टू टाइप एनीथिंग, वी ओपन द वर्ड सॉफ्टवेयर. इफ यू वांट टू मेक अ एक्सेल शीट, spreadsheet, you open a MS Excel or spreadsheet program. Okay, if you want to make a presentation, you open a presentation program. अलग-अलग वर्क के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स में है. Okay, and the instruction written. हेलो, क्लियर नहीं आ रही है. Okay, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो अपना जो माइक है, सॉरी जो वीडियो है और माइक है, दोनों ही ऑफ कर देना. आपको मेरी आवाज क्लियर आनी स्टार्ट हो जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड? द इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. Program also called software, and you all know what is software. In computing,
a program is implemented by a computer to solve and get results. Basically, a computer involves 3 steps. First is algorithm that we discussed before, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है. Second is flow chart, making a flow chart, and third is program, converting a flow chart in a program. This is the steps how to make a program. First is algorithm, second is flow chart, and third is program. And first is algorithm. All the software programs are written in special language called computer language. They follow a specific pattern of steps to achieve objectives. All the software programs are written in special language called computer language. They follow a specific pattern of steps to achieve. Means जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं वो सारे एक स्पेशल लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं जिन्हें हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस बोलते हैं. Before writing a program, we have to determine the objectives. Then we start developing a pattern of steps. अब मीन्स अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, न्यू एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उससे पहले हम उसके क्या लिखेंगे? एल्गोरिथम लिखेंगे, जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है. अंडरस्टैंड? हमें कोई भी, जैसे मुझे आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मीन्स आपको कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, उससे पहले हम क्या लिखेंगे? उसका एल्गोरिथम लिखेंगे. मीन्स वो सॉफ्टवेयर वर्क किस तरह से करेगा. लाइक जैसे आपको 2 एडिशन नंबर का आपका एल्गोरिथम है. स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 टेक 2 नंबर्स, step 3 add the 2 numbers, step 4 print the result, and step 5. This is the simple algorithm, okay, in which we add the 2 numbers. And 2 numbers कुछ भी हो सकते हैं, 1 or 2, 2 or 3, 14 and 15, anything. And second algorithm like this, in which we find out which number is greater to other number. लाइक आपके पास 2 नंबर हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से ग्रेटर कौन सा है दूसरे नंबर से. ये कैसे, इसके लिए एक एल्गोरिथम है जो आपका स्क्रीन पर आपको प्रेजेंटिंग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है. स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 टेक 2 नंबर्स, स्टेप 3 कंपेयर दीज 2 नंबर्स. इन दिस कंडीशन वी मेक अ डिसीजन बॉक्स, बिकॉज इफ कंडीशन इज लाइज इन दिस स्टेप. इस कंडीशन में क्या है आपका, इफ कंडीशन आ रहा है, तो इसमें क्या यूज करेंगे? डिसीजन बॉक्स यूज करेंगे. यहां हम चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी. अगर ए ग्रेटर देन बी है, मींस आपने एक ए नंबर है और एक बी नंबर है, और ए नंबर ग्रेटर देन है बी से, तो ये स्टेप 4 पे चला जाएगा. स्टेप 4 क्या है? प्रिंट ए इज ग्रेटर देन, मींस जो ए नंबर है वो ग्रेटर देन है. ये आपको टाइप होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. इट इज अ एल्गोरिथम. एंड इस और एल्स गो टू स्टेप 5. अगर ए बड़ा नहीं है तो इस 6th स्टेप पे चला जाएगा. स्टेप प्रिंट बी इज अ ग्रेटर देन. एंड नाउ स्विच ऑन स्टेप 5, एंड स्टेप 5 इज स्टॉप. ओके, एंड नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट. वी डिस्कस द फ्लो चार्ट. ओके, a flow chart is a diagrammatic representation. हमने फ्लो चार्ट के बारे में पहले अभी पढ़ लिया है, इससे पहले हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ चुके थे. अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट? एडवांटेजेस इज लाइक फ्लो चार्ट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इन मोर इफेक्टिव वे. मींस अगर हमने कोई एल्गोरिथम लिखा है और उसी एल्गोरिथम का एक फ्लो चार्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो ये हमें काफी इफेक्टिव वे से, काफी अच्छे तरह से उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करेगा फ्लो चार्ट. सेकेंड इज फ्लो चार्ट इज अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम. ये काफी बेटर वे है कोई किसी भी एक लॉजिक को अप्लाई करने का. मींस आपके माइंड में कुछ भी एक लॉजिक है, उसे आप फ्लो चार्ट के थ्रू एक पेपर पे, व्हाइट पेपर पे डायग्राम कर सकते हो, उसे अपना किसी को दिखा सकते हो बनाकर. अ फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज. मींस आपको मैंने भी बताया था इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कि ये स्टेप्स हैं प्रोग्राम बनाने के, लाइक एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, एंड थर्ड इज प्रोग्राम. और जो ये फ्लो चार्ट है ये एक डेवलपमेंट फेज है. ये हमें गाइड करता है कि हमारा प्रोग्राम जो बनेगा, लास्ट में जो आउटपुट निकलेगा प्रोग्राम का, वो किस तरह से काम करेगा. एंड फोर्थ इज अ फ्लो चार्ट हेल्प इन फाइंडिंग आउट एरर्स. और फ्लो चार्ट हमारी हेल्प करता है एरर्स को फाइंड करने में. फ्लो चार्ट की हेल्प से हम इजीली एरर्स को फाइंड कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? समटाइम द फ्लो चार्ट become complex if the problem logic is quite long.
मीन्स हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, फ्लो चार्ट के भी हैं। अगर आपका फ्लो चार्ट काफी बड़ा हो जाता है तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि वो सही से काम नहीं, मीन्स आपको उसको समझने में प्रॉब्लम होगा बाद में। अगर वो काफी बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम बस ये है, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा बट प्रॉब्लम होगा। इफ यू वांट टू चेंज और एडिट समथिंग इन अ फ्लो चार्ट, मींस अगर आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया है किसी पेपर पे, आपके पास कोई पेपर है, आपने उस पेपर पे फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया है और आप चाहते हो कि इसमें कुछ चेंज करना है, नहीं कर सकते हो, आपको फिर वो दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट इज रूल फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट। There are some rules that should be followed while making a flow chart. While drawing a proper flow chart, all necessary requirements should be listed out in a logical order. Means अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो उससे पहले आपको आपके पास एल्गोरिदम भी होना चाहिए। एल्गोरिदम इज नेसेसरी फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट। मीन्स एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए कि हमें फ्लो चार्ट में जो चीजें डालनी है वो किस तरह से डालनी है। उसका एक एग्जाम्पल भी आपको अभी बताएंगे। The flow chart should be clear, neat and easy to follow. Means आप जो फ्लो चार्ट डिजाइन कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, उसमें अंदर चीजें क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, आपके भी और दूसरों के भी। मीन्स अगर कोई चीज आपने लिखी है, जैसे आप कॉपी में कुछ भी लिख रहे हो हमारे लिए इन योर क्लास वर्क कॉपी, तो उस क्लास वर्क कॉपी में जो भी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी भी समझ में आए और हमारी भी समझ में आए। ऐसा ही फ्लो चार्ट होना चाहिए। Only one flow line should be used in conjunction with terminal symbols. अब आप इसमें ये देख पा रहे हो फ्लो चार्ट्स में लाइंस हैं, फ्लो लाइंस। एवरीबॉडी सी द फ्लो लाइंस? मैं दिखाऊंगा। हमेशा फ्लो चार्ट का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? टॉप टू बॉटम होता है। कैसे काम करता है फ्लो चार्ट? ऊपर से नीचे की तरफ काम करेगा, टॉप से बॉटम चलेगा। फ्लो चार्ट नेवर वर्क बॉटम टू टॉप, इट्स ऑलवेज वर्क ऑन टॉप टू बॉटम। ओके, अवॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस। मीन्स कभी भी फ्लो लाइंस का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन को नहीं काटेगी। इंटरसेक्शन, यू ऑल नो द इंटरसेक्शन। एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लाइक दिस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इफ यू वांट टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड बेटर, अगर आप इसे और अच्छा बना सकते हो तो अवॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस। सिक्स्थ रूल क्या है? इफ द फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स, it is better to use connector symbols to reduce the number of flow lines. अगर आपकी फ्लो लाइंस कॉम्प्लेक्स हो गई है तो इसके लिए हम कनेक्टर सिंबल यूज करें अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। आपको एक कनेक्टर सिंबल दिखाया था ना मैंने अभी, लाइक दिस। ओके, ओके, please. Okay, and this is the example of algorithm. It is convert a algorithm in a flow chart. इसमें आपका एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करा हुआ है, कुछ नहीं करा इन्होंने। इन्होंने एक डिसीजन प्रोसेसिंग बॉक्स लिया है और एक लिया है इनपुट और आउटपुट बॉक्स। फर्स्ट इनपुट बॉक्स में स्टार्ट and then start. Switch off your microphone. Please switch off your microphone. First, it's a start the flow chart, and first step is algorithm is start, and second step is algorithm is wake up in the morning, and this type in a processing box. It's a wake up in the morning. And third is go to the washroom, and like this all things type in a processing box, and last step is stop. You all see the flow chart. This is your book page, 19 page number of your book. You can see in your book also these steps. And last is converting an algorithm into a flow chart for adding two numbers. इसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेनली टू नंबर पर दिखाई दे रहा है। स्टार्ट एल्गोरिथम क्या है? स्टार्ट, टेक टू नंबर्स, ऐड द टू नंबर्स, प्रिंट द रिजल्ट एंड स्टॉप। और फ्लो चार्ट किस तरह से है? इनपुट बॉक्स में लिखा है इन्होंने स्टार्ट, सॉरी इनपुट बॉक्स नहीं, स्टार्ट बॉक्स में
It's a oval shape start box, the beginning of a flow chart. It's a start, and now input box में लिखा है इन्होंने input N1 and N2 means number 1 and number 2. And in a third step in a flow chart, it's sum the both numbers. इन्होंने दोनों नंबर को ऐड कर दिया है. Sum equal to N1 plus N2. And fourth step is print sum. And last is stop. Understand? This is the flow chart. Yes, sir. If you want to start you can write in a oval shape. Or output anything, you can write in a input output box. If you processing anything means adding, multiplying, you can write in a processing box and use the flow lines to connect the box. Okay. And your last step is program. This is the last topic of your chapter, program. The last step is solving a program. Program is to convert the flow chart into a program. This can be written in a computer language. ये आपका last step है. आपने algorithm डिजाइन कर लिया है, आपने flow chart बना लिया है. Means आपको पता है आपका जो आपका program है वो किस तरह से work करेगा. तो अब आप उसका programs लिख सकते हो computer languages. Understand?